Hello everyone, I hope you will be fine. Today we will study new chapter number 6, soil erosion and conservation. Okay, first of all I tell you about the formation of soil. In previous classes you all have studied how the soil was formed. By the withering of the rocks, soil is formed. Action of the rain, by the action of the sunlight. These are the factors, these are the natural factors through which a big rock species broken down into small pieces or convert into soil particles. Okay, now let us see how this soil erosion. What is the erosion? You see, erosion, the condition of wearing of our carry of soil by the action of water and wind is known as soil erosion. You know that our earth is made up of what things? Suppose that it is our earth. Okay, sphere. Its outer surface, it is divided in mainly 3 parts. You know well, I have made it. Look, the outer surface, I written here, it is the earth planet. Okay, the outer surface of earth is known as, crust. Then after, mantle. Okay, and then after, you see here, this inner part of the earth is known as core, which again divided into 2 parts, outer core and it is inner. It is outer core and this center, inner core. Okay, this inner core of the earth. We are living at the crust area of the earth. At the crust, small particles of rock is present in the form of soil. Okay, this soil is present on the crust part. Right? Soil, how erosion? Erosion means cutting of soil. You know that the topmost layer of soil is very fertile part of these parts. Okay, because of it contains a large amount of humus. Humus which is made up from the dead parts of plant and animals. Okay, so these things made our soil very fertile, which is present at the topmost layer of the earth. Okay, but because of actions of some natural factors, that is the rain which containing fast moving water and you can say current of wind, these when the blowing or moving anywhere, along with their speed they take some amount of soil. Okay, this topmost layer of the soil, which is the very fertile, is taken by these factors. This is the running water, this is the flowing fast wind current. Then the humus is also move out, or you can say this is carrying away of the soil. This process is known as soil erosion. Okay, soil erosion क्या होता है? You know that natural factors, मतलब नेचुरल फैक्टर्स क्या हैं? फास्ट ब्लोइंग एयर, हवा जो होती है जब वो तेज़ ब्लो करने लगती है तो हम उसको विंड कहते हैं, और अगर वो स्मूथली मूव करती है तो उसको हम एयर कहते हैं. जो होती है तो हम जानते हैं जो सॉइल का अपर मोस्ट जो लेयर होता है उसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है. ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस जो होता है वो डेड पार्ट्स होता है प्लांट्स की जब पक जाती हैं या उनकी डेड हो जाती है तो वो सारी चीज़ें कहाँ जाती हैं? सॉइल में जाती हैं. या कोई एनिमल्स डेड कर जाता है तो उसके डेड पार्ट्स किस में मिक्स हो जाते हैं? इस सॉइल पार्टिकल्स में मिक्स हो जाते हैं. तो जब मिक्स हो
में बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रोब्स यानी स्मॉल लिविंग थिंग्स इन सबको डिकम्पोज कर देता है और इस तरह से वो हमारे सॉइल को फर्टाइल बना देता है। डिकम्पोज करके वो ह्यूमस में कन्वर्ट कर देता है और ये ह्यूमस जो होता है सॉइल को फर्टाइल बना देता है। फर्टाइल का मतलब है कि वो ज़मीन, वो सॉइल इतना उपजाऊ हो जाता है कि जब हम उसमें कोई प्लांट सोन करते हैं, कोई सीड सोन करते हैं, बोते हैं, तो अच्छी तरीके से वो ग्रो करता है, उसमें अच्छे से सीडलिंग्स आते हैं, फिर वो अच्छी तरह से ग्रो करके प्लांट है और उसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है, फल भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसको बढ़ने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो सारे ह्यूमस में प्रेजेंट होते हैं। और ये ह्यूमस किस में मिक्स होता है बेटा? टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल में। लेकिन यही टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल किसी भी रीजन से बहा लिया जाए, हट जाए, जैसे ये सॉइल है, ये सॉइल के जोन होते हैं, ठीक है। जो अपर मोस्ट सॉइल होता है उसको कहते हैं ए जोन। ये होता है आपका ए जोन, जिसको कहते हैं टॉप, ये होता है टॉप सॉइल, ठीक है। टॉप सॉइल होता है इस जिसमें प्लांट लगाते हैं हम, इनके रूट्स पार्ट भी होते हैं। जैसे सपोज करो ये प्लांट्स है, ठीक है, ये प्लांट्स हमने लगा दिए किसमें? टॉप जोन में लगा दिए, ए जोन में लगा दिए, ठीक है, जिसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ह्यूमस। इसमें मैक्सिमम अमाउंट ह्यूमस प्रेजेंट होता है जो मिट्टी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट देता है, मिनरल्स देता है, ओके। जो प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो इसको एब्जॉर्ब करते हैं और अच्छी तरीके से ग्रोथ करते हैं। देख रहे हो ए जोन, जिसको हम टॉप सॉइल कहते हैं। इसके नीचे जो होते हैं वो छोटे छोटे ग्रेवल्स होते हैं, मतलब जो सॉइल, जो मिट्टी कैसे बनी है? चट्टानों के टूटने से बनी है। और ये चट्टान यानी रॉक्स कहते हैं बाय द एक्शन ऑफ विंड, बाय द एक्शन ऑफ रेन, बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट। मतलब बहुत तेज धूप होने से क्या होता है? गर्म होती है चट्टान, तो उसमें कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है, वो फैलती और सिकुड़ती हैं, जिसकी वजह से ये चट्टानों में क्रैकिंग आने लगता है, वो टूटने लगती हैं और टूट टूट कर इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं जिनको हम सॉइल कहते हैं। तो सॉइल का जो अपर पार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमस होने की वजह से ये बहुत ही फर्टाइल होता है, जिसमें प्लांट ग्रो करते हैं। इसके नीचे थोड़े बड़े बड़े चट्टान या ग्रेवल्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं? सब सॉइल कहते हैं। ये होता है आपका सब सॉइल। और इसके नीचे जाएंगे तो और बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, ठीक है, इनको कहते हैं क्या? बेड सॉइल कहते हैं, ठीक है, ये बेड सॉइल होती हैं। तो फिलहाल हमको पढ़ना है ये टॉप सॉइल। तो जब बहुत तेज विंड फ्लो करती है, बहुत तेज जब हवा बहती है, तो ये जो टॉप मोस्ट, अगर इस पर कोई प्लांट नहीं रहेगा तो क्या होगा? ये मिट्टी, ये सॉइल पार्टिकल्स फ्री हो जाएंगे। सपोज हमने इसको कट कर दिया तो इनके रूट्स भी तो डैमेज हो के डेड कर जाएंगे और हट जाएंगे, इसमें ये भी डिकम्पोज हो जाएंगे। अब क्या होता है कि जो टॉप सॉइल है के पार्टिकल्स हो गए, अब तो ये फ्री हो गए, अब इनको कोई बैंड करने वाला नहीं है, रूट ही नहीं है इसमें। रूट क्या करते हैं? इन सॉइल पार्टिकल्स को बैंड करते हैं, बाइंड करते हैं, ऐसे जकड़ के रखते हैं। तो इनको अगर तेज हवा भी बह के आती है तो उड़ा नहीं ले जा पाती है, या पानी जैसे बाढ़ वगैरह आ जाता है तो पानी क्या करता है? ये मिट्टी के ऊपर जब ये वाटर करंट आएगा तो ये कट करके बहाव के साथ बह जाता है। अगर ये फ्री सॉइल रहा तो पानी के बहाव के साथ ये कट करके क्या हो जाएगा? बह जाएगा। तो हम तो जानते हैं कि जो हमारा टॉप सॉइल है वो ह्यूमस वाला है, जब वही बह जाएगा तो उसके मिनरल्स भी बह जाएंगे, यानी इसका आ जाएगा। इस मिट्टी के बहाव को, कटाव को ही हम क्या कहते हैं? इरोजन कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। द कंडीशन ऑफ वियरिंग ऑफ और कैरिंग अवे ऑफ सॉइल, मतलब वो कंडीशन जिसमें वियरिंग ऑफ या कैरिंग हट जाता है, कट जाता है, किसके एक्शन द्वारा? बाय द एक्शन ऑफ वाटर, तेज वाटर के करंट से कट जाता है, या तेज हवा बह रही है तो उसके हवा के बहने से जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उसके साथ, इन्हीं को कहते हैं हम सॉइल इरोजन। क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन कहते हैं। अब इसके रीजन क्या है? सॉइल इरोजन क्यों होता है? जो टॉप मोस्ट सॉइल है वो कैसे विंड जो है अपने साथ बहा ले गई, या वाटर फ्लो के साथ वो फ्लो हो गया, बह गया, तो इसके क्या रीजन है? देयर आर द काजेज ऑफ सॉइल इरोजन। नंबर 1, रनिंग वाटर काजेज सॉइल।
अगर पानी बह रहा है, जैसे हम बाढ़ सुना है आपने, फ्लड आ जाता है तो क्या होता है, चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है, पानी भर जाता है ना। तो जब पानी भर जाता है तो पानी का फ्लो जिधर होगा तो स्वैल भी तो इसके कांटेक्ट में आ गया, तो ये स्वैल के पार्टिकल्स तो फ्री हैं। अब जब पानी बहेगा, फ्लड बहेगा, तो जो स्वैल के पार्टिकल्स हैं वो भी उसके साथ फ्लो हो जाते हैं, ठीक है। तो जो फ्लो हो जाते हैं तो उसी में तो ह्यूमस है, और ह्यूमस प्लांट के लिए कितना नीडफुल होता है, वो प्लांट को अच्छी तरह ग्रो करता है, ठीक है। तो जब वही पानी के साथ बह जाएगा तो क्या होगा, फिर हम उसको लगाएंगे तो क्या उसको मिनरल्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ठीक है, सही से उसमें प्लांटिंग नहीं होगी। तो इस तरह से जो मिट्टी है वो कट करके वाटर करंट के साथ ही फ्लो कर जाती है, ठीक है। तो एक तरह से ये रीजन हो गया रनिंग वाटर, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो गया। सॉइल इरोजन मीन्स मिट्टी का कटाव, ठीक है। तो ये एक रीजन ये हो गया। सेकेंड रीजन है विंड काजेस सॉइल इरोजन। तेज हवा बह रही है, आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में, समर में क्या होता है, जब बहुत चारों तरफ धूप होती है तो ड्राइनेस होती है, जब उस समय सनलाइट ज़्यादा होता है तो इतना ड्राइनेस, सूख जाते हैं सारी जगह। जब मिट्टी सॉइल ये सूख जाएगी और उस पर कोई प्लांट नहीं होगा तो पार्टिकल्स फ्री हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, और जब विंड फास्ट ब्लो करेगा तो इसके साथ जो पार्टिकल्स है वो भी क्या होंगे, धूल उड़ने लगती है ना, डस्ट उड़ने लगती है, तो वो डस्ट पार्टिकल यानी सॉइल पार्टिकल्स हवा के साथ उड़ जाएंगे, ब्लो कर जाएंगे। जब वो ब्लो कर जाएंगे तो क्या होगा, जो इसके साथ ह्यूमस है वो भी ब्लो कर जाएगा, यानी उसके मिनरल्स वगैरह भी चले जाएंगे। तो इस तरह से मिट्टी का कटाव होता है, सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। थर्ड थिंग है ह्यूमन बींग्स आल्सो काजेस सॉइल इरोजन। अरे ये तो सारी नेचुरल चीज़ें हैं, लेकिन हम इंसान भी, हमारी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है, बल्कि हमारी वजह से तो ज़्यादा हार्मफुल होता है ये सॉइल इरोजन, ज़्यादातर ये होता है। कैसे होता है, हम क्या करते जा रहे हैं, हम जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, हमको रहने के लिए घर चाहिए, घर चाहिए तो जगह चाहिए, जगह चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं, पूरे जंगल को काट करके साफ कर दे रहे हैं, फॉरेस्ट को हटा दे रहे हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज कर रहे हैं। एंड कटिंग ऑफ ट्रीज इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। इसी को कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, यानी जितना फॉरेस्ट है हमने कट कर करके उसको साफ कर दिया, जगह पे अपने बिल्डिंग्स बना लिए, घर बना लिया, स्कूल बना लिया, हॉस्पिटल बना लिया, फैक्ट्रीज खड़ी कर दी, ठीक है। तो इस तरह से हम कटिंग ऑफ ट्रीज कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। एंड डिफॉरेस्टेशन इज द मेजर काजेस ऑफ द, बहुत बड़ा रीज़न है सॉइल इरोजन होने का। तो हम जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्लांट्स को कट कर देंगे तो अपने आप ही जो टॉप मोस्ट सॉइल है उनको तो बाइंड करने वाला कोई रहा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से सॉइल इरोजन होता है, ओके। You see here, there is a plant, okay, which is embedded inside the soil. These are the soil particles, okay. And inside the soil particles, you are see that the network of roots. There is a many roots are present inside the soil, okay. What they are doing there? These roots, small roots, just capture the soil particles like that and just bind them. They are binders, they are acting inside the soil as a soil binder. जो roots होते हैं plants के, वो soil particle को कैसे जकड़ के रखते हैं, देखा आपने, कैसे ये roots क्या करते हैं, soil particles को जकड़ कर रखते हैं, bind करके रखते हैं। अगर हम plant लगाएंगे तो ये इनके root होंगे और roots दूर करेंगे, soil के अंदर spread हो जाएंगे, फैल करके इनके पार्टिकल्स को जकड़ लेंगे, बाइंड अप कर लेंगे। तब कोई तेज हवा भी आएगी ना, वो क्या करेगी, ये मान लो ये फास्ट ब्लोइंग विंड है, इट इज द फास्ट ब्लोइंग विंड, व्हाट हैपेंड देयर, you see there, they are binded just fastly, so wind can move through it, but this soil is captured here, they cannot move away along with them, okay. In this way we can prevent this soil erosion. But even we just for making our houses, for making our factories, for our necessities, we are just what we are doing, we cutting the trees, we are going to deforestation. What happened when the cut it down, there will be no root, there will be no root binder, no soil binder. Even what happened, along with this fast blowing air, these soil particles will move away, just go away, okay.
and in this way the soil erosion will happen. I think you will be clear that's now. Now next topic is how we can prevent the soil erosion. मिट्टी को कटने से कैसे रोका जा सकता है? क्या हम करें कि हवा उसको अपने साथ बहा कर न ले जा सके, पानी उसको अपने साथ बहा करने ले जा सके? इसके लिए अपना है कि सॉइल को फ्री ही नहीं छोड़ना है, सॉइल पार्टिकल्स को हमेशा बाइंड करके रखना है. जब वो बाइंड करके रहेंगे तो कोई भी उनको अपने साथ नहीं ले जा सकता है. तो द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन प्रिवेंट द सॉइल इरोजन दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन. कंजर्व मीन्स उनको संरक्षित कैसे कर सकते हैं हम, किस तरह से इस सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं. नाउ वी विल स्टडी नाउ. सी, सबसे पहले तो आप देख रहे हैं जो हमारे प्लांट्स हैं वो हमारे फ्रेंड्स हैं. बिना प्लांट्स के कोई एनिमल्स नहीं रखता, ना एनिमल के बिना प्लांट ग्रो करता. तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे तो क्या होगा, जितना ज़्यादा हम प्लांटेशन करेंगे उतना हमको सॉइल बाइंडर्स मिल जाएंगे, क्योंकि उनके रूट्स क्या करते हैं, सॉइल पार्टिकल्स को कैप्चर करके रखते हैं, बाइंड अप करके रखते हैं. तो हम जितना ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे उतने ज़्यादा हमें सॉइल बाइंडर्स मिल जाएंगे और कोई भी हवा उनको बहा के नहीं ले जाएगी या वाटर फ्लो अपने साथ उसको नहीं ले जा पाएगा. तो फर्स्ट थिंग हमें ज़्यादा प्लांटिंग करनी चाहिए. वी शुड मोर प्लांटिंग. ओके, फर्स्ट थिंग ये हो गया. इस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं. और सेकेंड क्या कर सकते हैं, सेकेंड ओके, सेकेंड हमको क्या हमें मेथड यूज करना चाहिए जिससे हम सॉइल को कंजर्व कर सके. तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड एफॉरेस्टेशन. मोर प्लांटिंग मीन्स एफॉरेस्टेशन. पहला लेना है, एफॉरेस्टेशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने हैं जिससे सॉइल बाइंडर्स मिले. सेकेंड थिंग हमको ये करनी है कि ऑन द हिल slopes, what you should say, on hill slope we should do what is टेरेस फार्मिंग. हमें क्या करना चाहिए, टेरेस फार्मिंग करना चाहिए. टेरेस फार्मिंग करना चाहिए. ओके, टेरेस फार्मिंग का क्या मतलब है? टेरेस फार्मिंग मीन्स होता है, आपने देखा है कि पहाड़ियों पर भी खेती की जाती है. पहाड़ों पर हिल्स, छोटे छोटे जो पहाड़ियाँ होते हैं ये स्लोप में होते हैं. यू सपोज इट इज ये कोई हिल है तो ये स्लोप में होते हैं. एक्चुअली होता क्या है, जब बारिश होती है ना, रेन, जब बारिश होगी तो ये पानी स्लोप की वजह से नीचे तेज धारा में बहेगा, फास्ट मूव करेगा, यहाँ से फास्ट रन करेगा. तो इसके रुकावट में जो जो मिट्टी आएगी ये कट करके इसके स्लोप के साथ ही बहता जाएगा. तो इस तरह से जो पहाड़ों पर जो सॉइल है उनके भी ह्यूमस, वो भी जो इम्पोर्टेंट उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ह्यूमस है वो भी पानी के साथ बह जाएंगे और इस तरह से मिट्टी का कटाव होगा, सॉइल इरोजन होगा. तो हमें क्या करना चाहिए, ऑन द हिल्स वी शुड फॉर्म टेरेस फार्मिंग. हमें वहाँ पर सीढ़ी नुमा खेती करनी चाहिए. मतलब ऐसे इसको कट करके हमने सीढ़ी बना दिया, स्टेप बना दिया, ये स्टेप बना दिया, ये स्टेप बना दिया, ये स्टेप बना दिया. ये हमारा क्या हो गया, हिल हो गया. ओके, ये हिल्स हो गया. एक्चुअली होता क्या है, अगर बारिश भी होगी ना या पानी भी देंगे तो क्या होगा, इसमें की मिट्टी तो ज़रूर कटेगी, लेकिन ये मिट्टी जो सॉइल इरोजन होकर के जो सॉइल बनी है वो इस स्टेप पर आ जाएगी और पानी इधर चला जाएगा. इसी तरह कुछ मिट्टी इसमें कटेगी, वो इस पे आ जाएगी, इस वाले खेत में, इसी तरह ये इसमें आ जाएगी. तो इस तरह से हम टेरेस फार्मिंग करके सॉइल इरोजन को काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं. ठीक है. थर्ड थिंग हम क्या कर सकते हैं, थर्ड हम पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं वाटर सॉइल कंजर्वेशन को प्रिवेंट करने के लिए. जस्ट वी शुड फॉर्म एम्बैंकमेंट्स. यू नो व्हाट इज एम्बैंकमेंट्स? वी शुड मेक डैम नियर द रिवर. ओके, ऑन द फील्ड वी शुड मेक डैम्स. हमें डैम बनाने चाहिए. ठीक है ना. बड़ी बड़ी जो बांध होती है क्या करती हैं, नदी है, सपोज दैट इट इज रिवर, तो हमें इनके तरफ मजबूत एक बैंक बनाना चाहिए, एम्बैंकमेंट बनाना चाहिए, डैम बनाना चाहिए. इससे क्या होगा, जब रिवर का लेवल बहुत बढ़ जाए
ये बांध उसको रोकने का काम करती है, और रोकने की वजह से वो पानी जो है वो फ्लड के फॉर्म में बाकी प्लेस पर जहाँ लोग रह रहे होते हैं, जो रहने वाली जगह है या जो खेती वाली जगह है, वो वाटर का फ्लो वहाँ जा नहीं पाता ड्यू टू द, ठीक है, और डैम। तो इस तरह से हम उसको सॉइल को इरोजन होने से रोक सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे, कंजर्व होगा। ओके।